Hi, Josefa. Hello, sir. How are you? Very well. Thank you, Josefa. I hope you're doing well as well. Yes, going on. Great. So, Great. Josefa, this call is getting recorded, and a lot of my viewers are going to learn from your experience, your questions, and obviously would want to do some business with you. So, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका enterprises क्या है, and आपको अगर आपके साथ अगर किसी को business करना है, then how can they reach you? Post which we will get into your question. Okay, fine. See, sir, basically I am in the supplying business, hardware supply, industrial hardware supply, and I am registered in the Marol at my residence, and my office is also in the Marol only. Basically, I supply the industrial pharmaceutical equipments, tools, abrasives, industrial acrylic sheets, in all types of industrial hardware and tools. And I have the dealership of Stanley and Goodyear, and these are all my basic major items which I supply. Stanley tools, I have taken the agency last 2 years back. Then from the I trade, as per the requirements of the customer also, I do. Basically my customers are from the Vasai base and Chakan. These are my Josefa, you muted yourself. one. Sorry for disturbing. No problem. One is in the Vasai. See, the customer name is Anchor Mark Private Limited. They are in the basically in the pharmaceutical equipment, machinery equipment. So these are my major clients. Okay. So anybody who's into pharmaceutical machinery or pharma industry is the person you can help, right? Yeah, right. Wonderful. Everything in tools and equipments and fasteners and basic all requirements. Correct. करेक्ट. सो हुजैफा, अगर आपके साथ किसी को बिजनेस करना है तो आपको कौन से फोन नंबर पे, ईमेल पे पहुंच सकते हैं लोग? सर, मेरा फोन नंबर है 9820972769 and my email ID is mzenterprises53@gmail.com. Then other one is mzmachinetools@gmail.com. Thank you very much, Huzefa. And this if possible, they can give me the inquiries. I'll send my profiles and all requirement brochures and what I supply and all the list. I'll send back to them. Sure. So I think for the viewers, आपके पास अभी contact number है, आपके पास email address है. So anybody who wants to do business with Huzefa can connect with him directly, and he will help you through whatever he does in his business. So Huzefa, आज आपको मेरे लिए क्या question? सर, what I am asking is, उस दिन last week में आपसे बात हुआ, लेकिन मेरा बात थोड़ा अधूरा रह गया. See, I am actually since last 20 years I am doing this business, but अभी क्या है, एकदम monotonous हो गया. मैं अकेले one man show ये business कर रहा हूँ. So now I am planning to establish one shop in some particular certain areas where is all the industrial areas. For example, I have selected one area like, for example, Vasai, because my major customers are from their side, Vasai East, because they are the major hub now. All Bombay industries are shifting to Vasai, New Bombay, Pune and all. So this is feasible for me from residence to go to Vasai and come up and down. I stay in Andheri. So basically I take normally by car 40 minutes or by train होएगा तो 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा. तो वो मेरे लिए इजी है. तो वहाँ मुझे एक शॉप एस्टेब्लिश करके वहाँ से ही अभी मेरा बिजनेस आगे कोप अप करना है. जो सप्लाई का है वो तो रहेगा ही, उसके साथ में ही मुझे एक्सपेंशन करना है शॉप एस बेस करके, ताकि मैं वहाँ बैठ के कर सकूँ. मेरे 4 एम्प्लॉयज रखूंगा मार्केटिंग के लिए या जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए, परचेज करने के लिए, बिकॉज माय मार्केट इज बेसिकली इन नागदेवी एंड बॉम्बे, प्रॉपर बॉम्बे. So daily up and down also बहुत अभी हेक्टिक हो गया है. So that's why I want to ask you कि ये सब मुझे feasible होएगा कि नहीं. One man show है, मेरा फैमिली में और कोई है ऐसा हेल्प नहीं है. My 2 kids are there, they are still studying. One is in 10th standard and other one is in 2nd standard. And my elder brother,
my elder brother is there, but he is doing his separate business. उसका अलग काम बिजनेस है, उसका भी सप्लाई का है, बट ही इज इन इलेक्ट्रिक लाइन एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन द विथ मी. वो अभी क्या फैमिली मैटर है, अलग अलग ही रह गया तो बेटर है वैसे. सो बेसिकली वन मैन शो. सो थोड़ा हिचकिच का होता है कि अभी ये माई एज इज 45 प्लस, 45 ईयर्स है, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, दिल में वो एक कंफ्यूजन चल रहा है लास्ट 2 महीने से. ओके, तो उज़ैफा, अगर मुझे आपका सवाल सही से समझ में आया, आपका कंफ्यूजन वहां से है कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा. हाँ, क्योंकि क्या है उसमें बेसिकली इतना सारा इन्वेस्टमेंट करूँ मैं, समझो चलो शॉप तो मैं रेंट पे ले लूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट 20-25 lakhs मुझे डालना पड़ेगा. इतना सब स्टॉक शॉप में खाली लेके तो नहीं बैठ सकता हूँ, पूरा सब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. वो सब करके बाद में मुझे वन मैन शो ये सब, तो दैट इज ऑल कंफ्यूजन. देखिए उज़ैफा जी, कैसे होता है ना, इसको बोलते हैं हाँ. बिजनेस को हम प्लान करके अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये करने का मतलब क्या होता है. अगर हमको ये जानना है, अब अभी आपको क्या जानना है कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं करूं तो पहला क्या मैं कर पाऊंगा, और दूसरा क्या ये करना कोई फायदेमंद होगा, या फिर मैं ये जो कर रहा हूँ वही कंटिन्यू करूं. वही कंटिन्यू करूँ. अब ये दोनों सवाल का आंसर कब मिलेगा, जब हमको पता होगा कि एक्चुअल में करना है क्या. मतलब वसई में अगर आपको शॉप डालना है और आपको उसका वहां सेटअप करना है, तो उसका एग्जैक्ट वर्कलोड क्या आने वाला है, आपको कौन सी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको कौन सी चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद कितना रिटर्न्स आएगा, इसके अगर हमारे पास जवाब हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओके हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. करेक्ट है. करेक्ट है. अभी वहां पे जाने के बाद करना क्या पड़ेगा विल डिपेंड अपॉन आपको बिजनेस कैसा करना है, यानी आपको कौन सी चीज वहां रखनी है, किसको बेचनी है, देयरफॉर आपको वहां मार्केटिंग में क्या लगेगा, देयरफॉर आपको वहां पे ऑफिस के परचेसेस में क्या लगेगा, देयरफॉर आप वहां पे जो ऑपरेशन, जो इनवॉइस बनाओगे या जो भी कुछ बनाओगे ऑपरेशन होगा उसमें हाँ. क्या लगेगा, और अगर वो वैसा करना है तो उसके लिए कैसे लोग लगेंगे, तो वो लोग कहाँ से आएंगे, वो लोगों को मैनेज कौन करेगा. जब ये एक साथ सोचते हैं ना तो कंफ्यूजन पैदा होता है, और जब भी केओस में होता है, कंफ्यूजन में इंसान होता है ना, तो डिसीजन नहीं ले पाता है, क्लैरिटी में डिसीजन ले पाता है. करेक्ट है. करेक्ट है. तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास पेन और पेपर है तो ये लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर ये हाँ. वीडियो वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है तो ये यूट्यूब पे आएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ये वीडियो को रेफर करिएगा और ओके. इस हिसाब से अपना काम, अपना प्लानिंग करिए. ये प्लानिंग के ओके. तरीके को बोलते हैं बिजनेस मॉडलिंग. ओके. ओके, यानी बिजनेस का ऐसा ढांचा तैयार करना जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि ये बिजनेस करने के लिए एफर्ट्स कितना लग रहा है, एफर्ट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी एंड एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये एफर्ट्स डालने के बाद हमको रिटर्न्स कितना आएगा, और क्या वो रिटर्न्स ये एफर्ट्स को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, इसका आंसर देता है ये तरीका, जो आंसर आपको चाहिए बेसिकली. करेक्ट है. तो ये इसमें 9 अलग अलग चीजों पे सोचना होता है. पहली चीज जो सोचनी होती है वो है कि आप कौन से प्रिसाइसली टाइप के कस्टमर के साथ डील करना चाहते हो, जो आपने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है कि मेरे मेजॉरिटी कस्टमर्स वसई में हैं. करेक्ट है. अब वो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कौन सा माल चाहिए, और वो कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. क्विक डिलीवरी इंपॉर्टेंट है क्या. अगर क्विक डिलीवरी इंपॉर्टेंट है तो क्विक डिलीवरी आप वसई से कर पाओगे या अंधेरी से कर पाओगे, तो ऑब्वियसली वसई से कर बस पाओगे. ऐसे ही कर पाओ. राइट. ठीक है. दूसरा, अगर वो कस्टमर को क्विक डिलीवरी का इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर आपको अलग सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप मरोल में से ही वो कर सकते हो जो आप वसई से करना चाहते हो. तो पहले तो ये समझना है कि कस्टमर कौन सा है और वो कस्टमर को क्या चाहिए, उसके लिए ऑफर क्या होना चाहिए. ये दूसरा पोर्शन है. तीसरा पोर्शन है कि ये कस्टमर तक आप पहुंचोगे कैसे. क्या आप फोन करके ये कस्टमर के ऑर्डर ले सकते हो, अगर हाँ ले सकते हो तो फिर आप वसई में हो या टिम्बकटू में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर अगर ये कस्टमर को मिलने से ऑर्डर मिलने वाला है तो आपका वसई में होना जरूरी है. ओके. करेक्ट. अब हो सकता है कि आप बोलो कि मिलने से हार्दिक भाई ऑर्डर मिलना आसान हो जाएगा. करेक्ट.
बट मिलने से ऑर्डर बढ़ेंगे क्या? अगर बढ़ेंगे नहीं तो वसई का कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको मिलना भी है तो आपको मरोल से आदमी भेजना, मरोल से मिल जाए। ठीक है। चौथा चीज जो आपको सोचना है कि अगर ये मैं कस्टमर मैंने पा लिया तो ये क्या कस्टमर के साथ में रिपीट ऑर्डर्स मुझे मिलेंगे क्या? क्योंकि अगर वसई में रहने से आप उसको सर्विस कर पाओगे और सर्विस और रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे और उसके वजह से अगर ऑर्डर ज्यादा मिलने हैं तो फिर वसई में रहना अच्छी बात, ठीक है। पर अगर कोई सर्विस का कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब एक बार बेच दिया उसके बाद फिर से कस्टमर को मिलने का मौका ही नहीं है, मौका नहीं, तो फिर वसई में रहने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप मरोल से कर पाओगे। मरोल से करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ये Yes. 4 चीजों पे सोचना है, कौन सा कस्टमर, वो कस्टमर को क्या चाहिए, क्या वो कस्टमर को जो चाहिए वो मैं वसई में रहने से आसानी से कर सकता हूँ, और क्या वो कस्टमर के साथ मैं रिलेशनशिप मेंटेन करके रिपीट ऑर्डर्स ले सकता हूँ। अगर ये चीजें हो सकती है तो आपको वसई में रहना चाहिए। ये चीजें अगर नहीं हो सकती है तो वसई में रहने का एडिशनल एडवांटेज नहीं है शायद, ओके, ठीक है। अभी ये चारों चीजें करने के लिए आपको करना क्या होगा, जिससे कि आप अकेले आदमी लोन सोल्जर ना रह जाओ, तो आपको सुपरवाइजर्स रिक्रूट करने होंगे। पर सुपरवाइजर्स तभी रिक्रूट कर सकते हो जब सुपरवाइजर को हैंडल करने के लिए कुछ हो। मतलब एक बंदे के लिए एक सुपरवाइजर नहीं हो सकता है ना, कम से कम अगर 5 लोगों की रिक्रूटमेंट की जरूरत है आपको तो आप एक सुपरवाइजर रिक्रूट कर सकते हो, रिक्रूट कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा सुपरवाइजर का कॉस्ट एक पर्टिकुलर होगा। अगर वो कॉस्ट देने के बाद उसके पास काम ही नहीं है तो आप सुपरवाइजर रिक्रूट नहीं कर पाओगे, और कर भी लोगे तो ये सोचोगे क्या हार्दिक भाई मैंने कर लिया पर उसके पास काम ही नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही बैठा होता है। अब अगर उसको निकाल दोगे तो आपको जाना पड़ेगा, तो फिर से वो कंफ्यूजन वाला माहौल हो जाएगा। तो क्या आपके ये काम को करने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत पड़ती है क्या? अगर हाँ पड़ती है तो आप सुपरवाइजर रिक्रूट कर पाओगे। अब 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये सोचना होगा कि जितने जो टाइप के कस्टमर को जो टाइप का ऑफर मैं देना चाहता हूँ और जो तरीके से मैं पहुंचना चाहता हूँ और जो टाइप की सर्विस देना चाहता हूँ, वो करने के लिए मेरे को क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ओके, ये एक्टिविटीज हो सकती है मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज, यानी पैम्फलेट बांटने जा रहा है बंदा। ये हो सकता है सेल्स वाला एक्टिविटीज, यानी डोर टू डोर जाके मिल रहा है। ये हो सकता है कहीं पे बैनर लगाने के लिए बात कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर वाले के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये हो गई मार्केटिंग और सेल्स वाली एक्टिविटी। फिर हो गई ऑपरेशंस वाली एक्टिविटीज, कि माल आया तो माल को रखना सही जगह पे वेयर हाउस में, वो माल को संभालना, जब देना है तभी लॉजिस्टिक्स वालों के साथ, टेम्पो वगैरह वालों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको ढूंढना, इनवॉइस बनाना, चिट्ठियां बनाना, सो दैट ये काम हो सके। कस्टमर के साथ फॉलो अप करना और उसको पूछना कि सर आपके पास माल पहुंचा या नहीं पहुंचा, सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा, कंप्लेन आई कि नहीं आई। तो ये सारा हो गया आपका ऑपरेशंस वाला काम। उसके बाद हो गया आपका आफ्टर सेल्स वाला काम। आफ्टर सेल्स यानी जो पूरा सर्विस कंपोनेंट है कि अगर मैं कस्टमर को अगर मैं पाऊं सही से, तो मैं चाहता हूं कि वो कस्टमर को मैं जिंदगी भर के लिए पाऊं। क्योंकि एक होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी एक बार जो सेल किया उसका वैल्यू, दूसरा होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी आज मैंने कस्टमर को पा लिया, अब जिंदगी भर वो कस्टमर मेरे साथ कुछ ना कुछ कमा रहा है, कुछ ना कुछ कमा रहा है। ठीक है। तो वो लाइफ टाइम वैल्यू अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? हो सकता है कस्टमर को जाके उधर बैठ के कॉफी पीना होगा उसके साथ, हो सकता है उसको बार बार जाके उसको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी होगी, करेक्ट है। हो सकता है उसकी कुछ और मदद करनी होगी जो शायद आपका बिजनेस नहीं करता है, पर अगर आपने मदद की तो आपके बिजनेस के लोग उसका दोस्त बन जाएंगे, और दोस्तों से हमेशा लोग खरीदते हैं। तो ये सारी हो गई आफ्टर सेल्स वाली एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज आप लिखिए कि आफ्टर सेल्स में क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। फिर आप लिखिए सपोर्ट में क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, यानी आपका अकाउंटेंट वहां बैठेगा क्या, आपके इनवॉइसेस वहां से बनेंगे क्या, आपके चालान वहां से बनेंगे क्या, आपका परचेस वहां से होगा क्या, आपका रिक्रूटमेंट वहीं से होगा क्या। तो ये सारी हो गई आपकी सपोर्ट एक्टिविटी। तो मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस वाली एक्टिविटीज और सपोर्ट वाली एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज आप लिखिए और फिर सोचिए कि हर एक एक्टिविटी में हर रोज के दिन में कितना काम होगा।
उससे आपको एक अंदाजा आएगा कि आपको लोग कितने चाहिए, आपको ये भी अंदाजा आएगा कि कैसे लोग चाहिए। ठीक है, ये बेसिस पे कितने लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए और आप क्या बेचना चाहते हो, ये 3 चीजों के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे करने का खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा। और अगर मैंने ये कॉस्ट कर दिया तो कॉस्ट को आप कैसे लिखो कि पहले इनिशियल अमाउंट का कॉस्ट कितना होगा और रिकरिंग कॉस्ट कितना होगा, यानी हर महीने भर आपको हर महीने कॉस्ट कितना होगा, और उसके अगेंस्ट लिखो कि ये सारी चीज अगर मैंने की, अगर मैं मिलने गया, अगर मैंने रिलेशनशिप बनाई, अगर मैं उसको बार बार सर्विस करने गया, ये सारी चीजें अगर मैंने की, तो क्या मेरे को हर महीने उतना सेल आएगा जितना सेल मेरे कॉस्ट से ज्यादा होगा और मैं सुपरवाइजर अफोर्ड कर पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपको नहीं जाना। या तो फिर उसको चेंज करना है कि आप अफोर्ड कर पाओ। ठीक है, ये पूरी कवायद को बोलते हैं बिजनेस मॉडलिंग। बिकॉज इसमें क्या है, अगर न्यूली शॉप ओपन किया है तो उसको कम से कम उसको सेटअप होने में 6 महीना साल तो जाएगा ही, कस्टमर्स आएगा, बेसिक मेरा फिक्स क्या तो रहना ही वाला है एवरी मंथ। करेक्ट, दैट इज फ्रॉम माय पॉकेट। करेक्ट, एवरी मंथ। जब तक कि वो थोड़ा बेस बनेगा नहीं, दैट आई हैव टू थिंक एवरीथिंग। तो मैं उसको उज़ैफा जी मैं उसको बोलता हूँ कैपिटल कॉस्ट, राइट। कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरा ऐसा सेटअप होना चाहिए कि अगले 6 साल तक वो मशीन के जैसा अपने आप चल पाए। अगर वो अपने आप नहीं चलने वाला है तो 6 महीने तक मैं कैपिटल डालूंगा और 6 महीने बाद मैं खुद को डालूंगा। करेक्ट है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप जब एक्टिविटीज लिखोगे तो वो एक्टिविटीज को सही ढंग से करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है सिस्टम्स की, यानी एक ऐसे कायदे सिस्टम्स बनाइए, सॉफ्टवेयर बनाइए जिससे कि वो काम आसानी से हो। बहुत इंटेलिजेंट आदमी की जरूरत ना पड़े, एक एवरेज आदमी इंटेलिजेंट सिस्टम पे काम करे, उससे आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा। एवरेज आदमी है तो एवरेज आदमी अगर छोड़ के जाएगा तो दूसरा एवरेज आदमी मिल भी जाएगा। और एक सुपरवाइजर के एवरेज आदमी को डिसिप्लिन में रखने के लिए आपको सुपरवाइजर्स के साथ आपको चलना है। आई थिंक आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है। हाँ, फोन आ गया तो डिस्कनेक्ट किया, इसमें म्यूट नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये चीज आपको करनी है। ये चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, थोड़ा सा धुंधलापना रहेगा। ओके, ठीक है। अब ये चीज करने में हो सकता है आप अटको, हो सकता है आपको सही से बीच बीच में आप अटक जाओ और समझ में ना आए कि कैसे करना है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो आप 2 चीज कर सकते हो। एक, हम मेरे जो YouTube के वीडियोस हैं, वो YouTube के वीडियोस में एक वीडियो है डिसीजन मेकिंग पे, कि आपको डिसीजन कैसे लेने चाहिए। डिसीजन कैसे लेने चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, ओके। और एक 3 या 4 वीडियोस की सीरीज है जिसको बोलते हैं हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी। हाउ टू बिकम कॉर्पोरेट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी। ओके, ठीक है। ये दोनों वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। ओके, फाइन। हाँ, और अगर आपको लगता है कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे सोचना जरूरी है और ये वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, then in that case you contact my team, we will tell you what programs we have. आप देखिए, अगर वो आपके काम के हैं then you enroll for that, you will get to talk to me every single week. Fine. तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। राइट, ठीक है। पर गॉट इट। ये एक बहुत बड़ा सजेशन मैं दूंगा उज़ैफा जी, क्योंकि इट इज 25 lakhs एंड प्लस। आंख बंद करके जब तक क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर मत कूदना। ओके, क्योंकि आप एक और ऐसा धंधा शुरू कर दोगे जिसमें आप ही फंस जाओगे। तो जो भी आपको लगता है ये बिजनेस में जो आप कर रहे हो उसमें जो गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी नए जब भी दुकान शुरू करोगे या ऑफिस शुरू करोगे
तब वो गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार फेल होगा तो वो हमारी गलती हो गया, हमको नहीं पता था। पर वही चीज पे दूसरी बार फेल दूसरी होना, बार कर, दैट इज वो अ गलती दैट नहीं इज अ होती। क्राइम, उसको गलती नहीं बोलते। हाँ, ठीक है, एनी मोर दैट्स क्वेश्चन व्हाई फॉर मी? आई हैड दिस confusion. उस that day I could not talk to you clearly because उस टाइम भी नहीं था, so that's why I मुझे लगा कि नहीं आपसे पर्सनली बात करूंगा तो मैं खुल के पूछ सकूंगा कि प्रॉपरली क्या चैनल से जाऊँ, कैसे जाऊँ। आई गॉट इट क्लियर वेरी नाइसली। अभी मैं आगे आपके और ये सब स्टडी करके then I'll get back to you sir, definitely. आप मुफद्दल को भी पूछ सकते हो, मुफद्दल खुद भी बिजनेस मॉडलिंग कर रहा है, तो अच्छा, आप मुफद्दल को भी पूछ सकते हो। मुफद्दल हमारे एक ग्रुप का हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं द प्रोपेल बोर्ड। ओके। तो हम हर हफ्ते मिलते हैं, हर हफ्ते मैं हेल्प करता हूँ एक ग्रोथ प्लान बनाने के लिए, और वो प्लान बना के हर हफ्ते हम उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। ओके फाइन। तो मुफद्दल भी ये कर रहा है, आप उसके साथ भी बात कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर पाएगा डेफिनेटली कि उसका तो जैसे वो नंबर, कर रहा है। उनका नंबर और उनके साथ कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हैं उनके साथ तो। हाँ हाँ हाँ, जो मेरे जो ब्रदर रहते हैं, एल्डर ब्रदर, वही बिल्डिंग में उनका ही वहीं पे ही रहते हैं वो अभी, मरोल में करेक्ट अंदर सेपी करेक्ट कॉलोनी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। में। ओके सर, ओके उज़ैफा जी, एनी अदर थैंक, क्वेश्चन यू हैव फॉर मी? नो नो सर, थैंक यू, आई गॉट इट यू आर क्लियर वेलकम। एंड आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली, एंड थैंक यू श्योर, वेरी मच फॉर दिस काइंड। मेरा थैंक यू। थोड़ा अभी माइंड थोड़ा अभी वो दिशा में मैं करके आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। अगर आप वसई में फाइनली ऑफिस ओपन करते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं बिल्कुल हाँ, आऊंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, आपको ओके, जरूर, आपको पहले बुलाओ सर। ऑलराइट, थैंक यू बिकॉज वेरी मच ये सर। माय प्रॉपर चैनल है and ये आपने मुझे गाइड किया आगे, मैं सबको बताऊंगा सर आप इस बारे में डेफिनेटली। श्योर, थैंक यू वेरी मच उज़ैफा। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।